Hello students, today in the first module of our chapter S block elements, we are going to discuss about the introduction of the chapter, basically which all terms you would require in the due course of the chapter, and secondly we will be discussing about the trends of group 1 elements. So the first thing that we need to understand about the S block elements is their electronic configuration. Now let's take an example over here just for the sake of understanding. अगर तुम बात करते हो लिथियम की, that is the first element of the S block, group 1, lithium has the atomic number of 3 and the electronic configuration would come out to be 1s2, 2s1. Similarly, अगर बात की जाए सोडियम के बारे में, तो सोडियम has electronic number of 11 and then you would have the electronic configuration as 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अच्छा, ओवर हियर इफ यू जस्ट नोटिस, तो जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद आ जाएगा पोटेशियम. ओके, एक चीज तुम नोटिस कर सकते हो, यू स्टार्टेड ऑफ विद 2s1, देन इज 3s1, देन वुड कम 4s1, then 5s1 and so on and so forth. It would keep on going. Over here what we can say is that for group 1 elements the general outermost electronic configuration would always come out to be ns1. Further अगर बात की जाए, चलो बेरिलियम के बारे में भी बात कर लेते हैं. बेरिलियम atomic number is 4, electronic configuration 1s2, 2s2. Similarly if you talk about magnesium, then magnesium atomic number is 12, electronic configuration would be 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. अच्छा, यहाँ पे नोटिस करो, देखो पहले बेरिलियम के लिए था 2s2, then 3s2, तो इसके बाद वाला क्या आएगा, कैल्शियम would be 4s2, then next would be 5s2, 6s2 and so on so forth. It would keep on going. Therefore, what we can say that the general electronic configuration for group 1 and group 2 is group 1 के लिए ns1, group 2 के लिए it is ns2. Further, the next thing what we need to understand over here is that तुम्हारा जो भी group 1 element होता है ना, group 1 elements are also referred as alkali metals. And why are they referred as alkali metals? तो over here अगर तुमने लिया लिथियम या तुमने लिया सोडियम, पोटेशियम, जो कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट अगर तुम लेते हो, एंड लेट्स सपोज हमने सोडियम लिया, इफ यू आर ट्रीटिंग इट विथ वाटर, तो तुम्हें NaOH मिलेगा विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज ऑल्सो एन अल्कली. And therefore what we would say is that group 1 elements, if reacted with water, gives you corresponding alkaline solution or strong basic solutions, and therefore group 1 are referred as alkali metals. अच्छा, similarly group 2 के बारे में अगर बात की है ना, then group 2 elements are referred as alkali earth metals. Now why is this so? It's because सर ये कंपाउंड भी वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस देंगे एंड दीज मेटल्स आर फाउंड इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, देयरफॉर दे आर रेफर्ड एज अल्कली अर्थ मेटल्स. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सम फ्यू थिंग्स ओवर हियर. नाउ ओवर हियर इन दिस चैप्टर यू विल कम अक्रॉस अ टर्म मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. So for that what we need to remember that melting point always depends upon two factors. सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होगा लैटिस स्ट्रक्चर. सेकेंड वन वुड बी सिमेट्री और कंपैटिबिलिटी. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, नो वरी. अच्छा, लैटिस मीनिंग व्हाट, तो लैटिस मीन्स क्रिस्टल. अगर हम लोग ने NaCl देखा है, कॉमन सॉल्ट. ओके, कॉमन सॉल्ट हमेशा क्रिस्टलिन फॉर्म में रहता है ना, कॉमन सॉल्ट के हमेशा छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते हैं. ओके, सो if we start talking about NaCl, then what we could say, NaCl is always crystalline. Okay, and in crystals को हम लोग लैटिस बोलते हैं.
Therefore, these are referred as lattice. अच्छा, ये lattice का है ना, बहुत सारे अलग अलग structures हो सकते हैं. It might be cuboidal, it might be square, it might be rhomboidal, it might be hexagonal. We don't know about that, or rather, we are not dealing with that right now in this chapter. So, जब वो आएगा तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. As of now, हम लोग बस ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर तुम्हारे पास एक बड़ा lattice है, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा. अगर एक छोटा क्रिस्टल है तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगा. सो व्हाट वी कैन से, इफ योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज लार्ज और इट्स ह्यूज, योर मेल्टिंग पॉइंट वुड गो ऑन इंक्रीजिंग. इफ योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज लेस, then the melting point would go on decreasing. That's it, what we need to remember over here. Further, अगर बात की जाए compatibility की, तो compatibility means what? Let's take an example. Over here, in the first case, I have two atoms. एक है छोटा एटम, दूसरा थोड़ा सा बड़ा एटम. ओके, फर्दर अगर बात की जाए दूसरे केस की, तो एक एटम उसका साइज कांस्टेंट है, वो छोटा ही है, बट जो दूसरा एटम है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दिस देर इज नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू एटम्स. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक आयनिक कंपाउंड बना है ये, नो डाउट अबाउट इट. ओके, बट इन आयनिक कंपाउंड्स में कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है. तो जहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी, दैट कंपाउंड कुड बी ब्रोकन वेरी इजीली. जहाँ पे सिमेट्री होगी, वो कंपाउंड इजीली ब्रेक नहीं हो सकता. सो ओवर हियर इफ यू जस्ट नोटिस, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी में से किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा? इट वुड बी फॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी, दैट वुड बी लेस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए वुड बी स्लाइटली हायर. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. सो मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स होते हैं. डोमिनेटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा कौन सा है? तो लैटिस स्ट्रक्चर या लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी से अगर आंसर नहीं मिलता है, देन वी वुड मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज नथिंग बट योर सिमेट्री और योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग एटम्स. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. यार मेल्टिंग पॉइंट तो हो गया, अब बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं. सो ऑन व्हाट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स, लेट्स सी. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. सबसे पहला फैक्टर इज द वैन डर वाल फोर्सेस. Second factor is the hydrogen bond, and the third factor is nothing but polarity. Okay, now what do you understand by van der Waals forces? So van der Waals forces are weak forces of attraction which are resulting in neutral atoms. तो ध्यान देना, देखो, let's suppose मेरे पास एक एटम है, कोई भी randomly placed atom. Okay, and इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, let's say this is your nucleus in the center. Let's say I have sodium. चलो मान लेते हैं सोडियम है मेरे पास, एंड सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1. ओके, अच्छा, यहाँ पे इफ यू नोटिस, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो चलो उसको मार्क कर लेते हैं. सो सोडियम आउटरमोस्ट शेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन. फर्दर सर इनर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 electrons, and the innermost shell contains only 2 electrons over here. ठीक है, अच्छा अब इमेजिन करो, देखो, if you imagine that तुम्हारा मॉलिक्यूल, तुम्हारा एटम जो है, कुछ इस तरीके से हम लोग ने एक इमेजिनरी एक्सिस में कट कर दिया. चेक करो. So if you are cutting your imaginary axis or if you are cutting your atom through an imaginary axis, अब होगा क्या देखते हैं. Sir, on the other side, on this side or on the first side over here, I would say you have 1 2 3 4 5 and 6 electrons. So over here you have 6 electrons. अच्छा, दूसरे साइड पे चेक करो कितने हैं. तो यहाँ पे है 1 2 3 4 और 5 ही इलेक्ट्रॉन है यार यहाँ पे. So that means, can I say, listen carefully, can I say कि this side of the atom would be slightly more negative whereas this side would be slightly more positive. And because of this partial positive and partial negative charge, क्या होगा, तो इसके बाजू में जो एटम होगा ना, वो भी उसी के तरह अलाइन कर जाएगा. मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके बाजू में जो एटम रहेगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा. मतलब ही वुड टेंड टू पुट मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना. एंड उसके बाद वाला एटम क्या करेगा, वो भी वैसे ही अरेंज करेगा. बिकॉज ऑफ दिस, चेक करो, विल यू गेट वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स.
एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रेफर्ड एज वैन डर वाल फोर्स। अच्छा, अब देखो तुम ऐसा भी सोच सकते हो यार ये फोर्स तो बहुत ज़्यादा वीक होगा, डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा वीक होगा, ओके, बट देन इमेजिन right now you're just talking about 1 atom, 2 atom, 3 atoms, at the most 10 atoms, okay, but when you have millions of atoms together, ये भले ही weak force है, but right now in millions of atom it would be a considerable amount of force, है ना? तो वो चीज़ का ध्यान रखना। Currently we are not talking about only 1 atom or 2 atom, हम लोग millions of atom के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने सिर्फ 2 atoms लिए, ठीक है? So that is clear with van der Waals forces. Hydrogen bondings and polarity, this is something that you would learn in gaseous state, so let's keep it for that chapter over there, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। So melting point भी हो गया, boiling point भी हो गया, okay, the next thing that we need to discuss over here is the ionization energy। अच्छा, what do you mean by ionization energy? Point number 1, तो देख लेना, ionization energy is nothing but the minimum energy required। प्लीज़ ध्यान देना, आयोनाइजेशन एनर्जी में 4 पॉइंट्स है, एंड अगर ये 4 पॉइंट्स नहीं लिखोगे ना तुम्हें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? सो देखते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, ओके, यस, आयोनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom, ओके, तो ध्यान देना, अगर तुम ये सब वर्ड्स नहीं लिखोगे तो तुम्हें डेफिनेटली सारे मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना? चलो देखते हैं, या आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट डज इट डिस्कस, देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। अच्छा, किसके आउटरमोस्ट शेल से? तो आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हे जस्ट नोटिस, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है एक एटम से, मतलब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, यू नीड टू गिव एनर्जी टू दिस एटम, right? And therefore what you would remember is that ionization energy are always positive, okay? वो हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है? So because this is always an endothermic reaction, so definitely can I say कि तुम्हारे पास अगर कोई भी endothermic reaction आ जाए then इसका जो भी डेल्टा H होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, okay? Now what does delta H stands for? Delta stands for change in energy। तुम हीट करोगे तो एनर्जी तो चेंज होगा ना यार, okay? So delta stands for change in the energy, और delta stands for the change, and secondly H stands for the energy। So because energy is changing, you would say it as delta H, that's it, nothing more than that, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, now just listen over here, हाँ देखिए, if you talk about sodium, sodium has an atomic number as 11 and the electronic configuration as 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1, okay? अच्छा चेक करो, 3s1 already unsatisfied है, या rather I would say it is half filled, बट हाफ फील्ड से एस ऑर्बिटल को ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड होता, ठीक है? तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा पढ़ा है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मच मोर स्टेबल, बट दैट्स नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एस, इसको याद रखना, ठीक है? एस में वो ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं जनरेट कर सकता। सो ओवर हियर इफ यू जस्ट नोटिस, सोडियम क्या करेगा? सोडियम वुड टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज सोडियम इटसेल्फ वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, तुम्हें इसको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। Therefore what we can say that the energy needed to remove the first electron, that is first ionization energy, would be always small, okay? अच्छा चलो आगे नोटिस करते हैं, देखते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया, सो आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, इसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? चेक करो, इट वुड बी 1s2, 2s2 and 2p6। Here now just check, p is completely filled and Na positive का octet भी complete हो चुका है, and because of that he is gaining maximum stability।
अब just imagine something like this. Right now, me as sodium, I am stable. तो if I am stable, will I lose my electron and become unstable? कभी भी नहीं. ओके तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सो देयरफॉर कैन आई से दैट द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज़ नथिंग बट द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वुड बी मच मोर लार्जर. ठीक है, तो देखो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक. वी सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. कौन से दो टाइप्स, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड. थर्ड भी होता है, but right now let's not discuss about it. Okay, so first ionization energy would always be what, will always be smaller as compared to the second ionization energy. तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, first ionization energy is always smaller as compared to the second ionization energy. ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे. अच्छा यार स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, वो भी देख लेते हैं चलो एक बार, है ना. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज स्मॉलर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड दैट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाफ ऑफ द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, इसका मीनिंग क्या है कि अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 500 तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी उसका डबल हो जाएगा 1000. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. तो चलो आगे देखते हैं. लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द एक्चुअल डिस्कशन ऑफ द चैप्टर नाउ. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 1 में सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लेट्स चेक दैट. द एलिमेंट्स दैट कम्स are lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. अच्छा, now notice all of these elements are they metals? So yes, all of these elements, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, all of them are 110% metallic elements, and therefore what you will say that occurrence of these elements, all of them are metals. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज द एटॉमिक साइज, एंड वी ऑलरेडी नो दैट एज वी मूव डाउन फ्रॉम लिथियम towards your sodium atom, what is going to happen? The atomic size is going to increase. Right now I just have few values for you. These values are not to be remembered, so don't bother about it. These values are just for the sake of your reference. तुम्हें पता चलना चाहिए कि हाँ how is it increasing, या actually increase हो रहा है तो कितना increase हो रहा है. ठीक है, so देखते हैं. The atomic size check करो. As you are moving down the group from 152 picometers, you have reached a size of 262 picometers. मतलब atomic size is increasing. एक और चीज, just understand this thing, very very important. Because lithium has the smallest size in group 1 elements. Lithium cannot dissolve with other elements of the same group. हाँ, लेकिन lithium dissolves with sodium. ध्यान देना, lithium only mixes with sodium at a temperature above 380 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लिथियम एंड सोडियम एक साथ मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ वही दोनों मिक्स कर सकते हैं, बट वो भी कब, एट अ टेम्परेचर ऑफ अबव 380 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, नॉट ओनली दिस, लिथियम ना इसका साइज इतना छोटा है दैट लिथियम कैन ओनली गिव राइज टू substitutional alloys. चेक करो, and it cannot give rise to something called as interstitial alloys. ठीक है. अच्छा, what are substitutional alloys? I'll just explain you in few minutes. ठीक है, आगे देखते हैं. Let's talk about the next one. एटॉमिक साइज हो गया, तो चलो आगे आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं. हे, व्हाट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर ऑफ पीरियोडिक टेबल, हमने कुछ ऐसे पढ़ा है कि एज द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग. मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, तो चेक करो, आयनाइजेशन एनर्जी वुड गो ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. सो इफ यू नोटिस फ्रॉम लिथियम टूवर्ड्स रुबिडियम या टूवर्ड्स सीजियम, तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, है ना. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ओवर हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में नहीं बात कर रहे. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड मुझे बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा. क्यों? सो बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज गिवन टू द एटम. इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन.
ठीक है, चलो आगे देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हे नाउ व्हाट वुड हैपन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वुड सिंपली गो ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. लिथियम बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक्चुअली वो मेटल ही है, सो इट्स नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1. सोडियम इज 0.9, potassium and rubidium are 0.8 respectively. Further, cesium is 0.7. चलो, next thing what we need to remember is density. अच्छा देखते हैं. Hey, what I know, density is nothing but mass upon volume, है ना? अच्छा, just check. दैट मीन्स कैन आई से कि सर अगर डेंसिटी डिटरमाइन करने का बात है तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो सबसे ज़्यादा मास के ऊपर डिपेंड करेगा. एंड देयरफॉर व्हाट वी नो दैट फ्रॉम लिथियम टूवर्ड्स रुबिडियम तुम्हारा एटॉमिक मास इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. एंड इफ योर एटॉमिक मास इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डेफिनेटली योर डेंसिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है दैट डेंसिटी इंक्रीज ज़रूर होती है, बट फॉर पोटेशियम your density decreases very slightly. So what would be your statement for density? For density you will write down, for group 1 elements the density goes on increasing down the group, except for potassium it decreases. That's it, nothing more than that. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Talking about density ना, चेक कर रहा है यहाँ पे ये जितने भी मेटल्स है ना इनका डेंसिटी बहुत कम है, या रादर आई वुड से 2 से भी कम है. व्हाट इज ऑब्जर्व, चलो ये मेटल्स तो हो गए, इनके डेंसिटी बहुत कम है. ठीक है, अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि हाँ ऐसा मेटल बताओ जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे 2 मेटल्स जिनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है या रादर मैक्सिमम डेंसिटी आर ऑस्मियम एंड इरिडियम. जस्ट चेक हो भैया, ऑस्मियम उसका डेंसिटी कितना आ रहा है? द डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम इज 22.57, whereas density of iridium is 22.61 grams per centimeter cube. अच्छा एक और चीज़ ये भी याद रखना, जनरली क्या देखा जाता है? जनरली metals have density greater than 5 grams per centimeter cube. ओके, 5 grams per centimeter cube. अच्छा, ऐसे 2 एलिमेंट्स और याद रख लेना. एस ब्लॉक तो है ही, एस ब्लॉक में किसी का भी डेंसिटी मोर देन 5 नहीं है. अच्छा, अगर किसी का भी डेंसिटी मोर देन 5 नहीं है तो व्हाट यू वुड से कि ये मेटल्स तो है बट ऑल ऑफ देम आर सॉफ्ट मेटल्स. एंड तुमने शायद पढ़ा भी रहेगा ना, लोअर ग्रेड्स में ऐसा एक क्वेश्चन आता था कि सोडियम कैन बी कट ईजिली विथ नाइफ. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल. सो या दैट्स द एब्सोल्यूट रीजन फॉर दैट. ठीक है, बट यस इफ यू टॉक अबाउट फ्यू अदर एलिमेंट्स, तो देर आर 2 एलिमेंट्स जिनका डेंसिटी इज लेस देन 5 एंड दे बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स. दीज 2 एलिमेंट्स आर स्कैंडियम एंड टाइटेनियम. ओके, स्कैंडियम विद एन डेंसिटी ऑफ 4 grams per centimeter cube, whereas titanium with a density of 4.7 grams per centimeter cube. And just in case if you want to remember, you could remember this, mercury even though it is liquid at room temperature, हमने पढ़ा है mercury liquid होता है at room temperature, so even though mercury is a liquid at room temperature, उसका density is around 7.2 grams per centimeter cube. इसको अगर तुम्हें याद रखना है तो तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ये तो हो गया डेंसिटी, है ना, डेंसिटी, एटॉमिक साइज, वी हैव डन विद दिस. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट वन, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. अच्छा चेक करना, आई जस्ट गिव यू द वैल्यूज, यू डिसाइड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. सो इफ यू टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट चेक योर मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. एंड नॉट ओनली डिक्रीजिंग, तुमने एक और पॉइंट नोटिस करना चाहिए यहाँ पे, द मैक्सिमम डिफरेंस. चेक करो कहाँ पे, द मैक्सिमम डिफरेंस इज बिटवीन लिथियम एंड सोडियम. And if you notice, lithium belongs to the second period and sodium belongs to the third period. So can we say कि तुम्हारा maximum difference in melting point would be observed in the second and the third period. अच्छा, similarly एक और चीज़ notice करो, यहाँ पे ना minimum difference है. अच्छा, कहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं. This is third, तो obviously this
has to be fourth, this has to be fifth, and this has to be sixth. So can we say the maximum difference in melting point would be observed between second and the third period? वही the minimum difference would be observed between the fifth and the sixth period of your S block elements group 1. सिमिलरली अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात देखी जाए, चेक करना, बॉइलिंग पॉइंट में भी द बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. हाँ, एक रुबीडियम को छोड़ के, रुबीडियम में वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, बट ठीक है, यू कुड श्योरली से दैट योर बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. अच्छा, एक और चीज़, वापस वही, द मैक्सिमम डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है? द मैक्सिमम डिफरेंस इज अगेन बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड पीरियड. दिस इज द मैक्सिमम डिफरेंस. अच्छा, मिनिमम डिफरेंस कहाँ आ रहा है? तो यार देख लो, मिनिमम डिफरेंस वापस वहीं पे आ रहा है, विच इज़ बिटवीन फिफ्थ एंड द सिक्स्थ पीरियड, है ना. सो boiling point and melting point, both of them goes on decreasing down the group. Maximum difference between the second period and the third period, minimum between the fifth period and the sixth period. Okay, so these were all the trends of your S block elements group 1. आगे, the next thing that we are going to learn is the energy of formation. So let's meet up in the next module. Till then, thank you students and happy learning.